Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. This is Kirti here and our topic for today is from class 11th Biology chapter 1 that is the living world. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि what is biology? Biology is the study of life on earth. It is the study of evolution of living organisms on earth. All living organisms are linked to one another by the sharing of common genetic material, but to varying degrees. You all have already heard about living and non-living organisms, but how can you define what is living and what is non-living? For this we have some certain characteristics like all living organisms grow. They increase in mass and increase in number. A multicellular organism grows by cell division. In plants, the growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. But in animals, this can only be seen up to a certain age. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हम ये देखते हैं कि उनकी ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होती है, लेकिन प्लांट्स में हमेशा सेल डिवीजन होती रहती है, पर एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक, एक सर्टेन उम्र तक ही सेल डिवीजन हो सकती है। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे? वो अपने ऊपर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को स्थापित कर सकते हैं, वो अपने सरफेस पर उसको रहने दे सकते हैं, जिस वजह से हम उसकी ग्रोथ या फिर उसके मास में इंक्रीज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर ग्रोथ का क्राइटेरिया इंक्रीज इन मास है तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज asexual reproduction. Asexual reproduction occurs in lower organisms like fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce. In hydra and yeast, we can observe budding. In planaria or flatworms, we observe true regeneration, that is, a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. But whenever it comes to unicellular organisms like bacteria and amoeba, reproduction means to increase in number of cells. Whether in multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents, and that is called sexual reproduction. But how can you define whether reproduction is a characteristic of living organism? That means we all know that some humans, mules, sterile worker bees do not reproduce at all. That means we can say that reproduction also cannot be a defining characteristic of living organism, just like growth. Let's talk about another characteristic, that is metabolism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब केमिकल से बने हुए थे, चाहे ये केमिकल्स छोटे हो या बड़े, ये किसी भी क्लास, साइज या फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं और ये सब मिलकर के बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। इनकी कन्वर्जन्स को ही हम केमिकल रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। चाहे वो कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन हर समय चलता रहता है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो या वो माइक्रोब हो, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम नहीं देखते हैं। इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म है इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ or living being. All living organism has the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological. हम अपने environment को अच्छे से sense कर सकते हैं, चाहे वो plants ही क्यों ना हो। Plants भी अपने stimulus को respond करते हैं, वो sunlight को, वो water को, वो UV rays को, वो carbon dioxide को respond करते हैं।
इवन जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग शो करते हैं, वो भी फोटो पीरियड की वजह से उनका रिप्रोडक्शन रेट भी अफेक्ट होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, इसलिए उनका अंदर कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की जब भी बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। वो खुद के बारे में सोच सकते हैं, खुद के एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हैं। दैट मीन्स द कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, ऐसा क्यों होता है कि हम ये डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि वो लिविंग स्टेट में है या नॉन लिविंग स्टेट में। आपने एक स्टेज पढ़ी होगी जिसके बारे में हम कहते हैं कोमा। कोमा में जब कोई आदमी होता है तो उसकी बॉडी हिल नहीं रही होती है, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है या डेड है? इवन अगर आप देखें तो जब कोई आदमी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है, उसको ब्रेन डेड बोल दिया जाता है, तब भी उसका हार्ट और उसके लंग्स को रिप्लेस करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट और उसके लंग्स भी लिविंग होते हैं। तो ऐसे स्टेज में हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज डाइवर्सिटी? जब भी हम अपने आसपास किसी को भी देखते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। आप इंसेक्ट्स को ले लीजिए, आप प्लांट्स को ले लीजिए, आप बीज को ले लीजिए, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। इवन अगर आप ह्यूमंस की बात, ह्यूमन एक दूसरे से अलग दिखता है, चाहे उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका रंग रूप, उसका चेहरा एक दूसरे से अलग होता है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे वर्ल्ड में अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो कैसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं? सबका नाम रखना हम कैसे कर सकते हैं कि सबका नाम रख, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसका पर्टिकुलर नाम देने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़े, और उस प्रोसेस का नाम दिया गया नोमेनक्लेचर। लेकिन नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करने से भी पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना ज़रूरी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस का नाम होता है आइडेंटिफिकेशन। इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए एक कोड बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICBN। उसी तरह से जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इवॉल्व किया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जो भी बायोलॉजिस्ट हमें साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन है जेनेरिक नेम और सेकंड वन है स्पेसिफिक एपिथेट। और इन दो कंपोनेंट्स वाले नेम के सिस्टम को कहा गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये नेमिंग सिस्टम सबसे पहले दिया गया कैरोलस लिन्नेयस के द्वारा। उसके लिए जो नोमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया, जैसे कि जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो हमेशा लैटिन में ही होगा और लैटिन में और इटैलिक्स में ही लिखा जाएगा। उसके अलावा सेकेंड टाइप कि जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड वर्ड होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर दोनों के दोनों वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम के अगर हम हाथ से लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन करना है, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। इनके भी अलावा एक पॉइंट और है जिसमें कि हम ऑथर के बारे में बात करते हैं कि जिस ऑथर ने उस प्लांट को या उस नेम को सजेस्ट किया था उसका नाम पीछे एब्रीविएशन में लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो इसका मतलब होता है कि ये जो नाम है ये सबसे पहले किसने दिया? लिन्नेयस ने। अब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, या बल्कि ये कह सकते हैं बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरत थी कुछ ऐसे तरीके को निकालने की जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को बांट सके। उस प्रोसेस को कहा गया क्लासिफिकेशन।
Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप की बात करें, जैसे कि हम प्लांट्स की बात करते हैं या हम एनिमल्स की बात करते हैं, जब आप प्लांट्स को देखोगे तो आप उसको एनिमल नहीं कहोगे, जब आप एनिमल को देखोगे तो आप उसको प्लांट नहीं कहोगे। या हम डॉग की बात करते हैं या हम कैट की बात करते हैं, डॉग्स अलग हैं, कैट्स अलग हैं, ह्यूमंस अलग हैं। लेकिन ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको अगर हम इनको कन्वीनियंटली कैटेगरीज में बांटा जाए तो ये एक टैक्सा कहलाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि डॉग एक टैक्सा है, वहीं एनिमल भी एक टैक्सा है। इसी तरह से प्लांट अगर एक टैक्सा है तो व्हीट भी एक टैक्सा है और ह्यूमंस भी एक अलग टैक्सा है। तो टैक्सा मीन्स अ स्मॉल कैटेगरी और अ स्मॉल यूनिट। Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa and the process of classification is taxonomy. वहीं आप एक अलग वर्ड भी सुनते हैं जिसका नाम है systematics. Systematic is the systematic arrangement of organisms. जब हम organisms को systematically किसी एक particular group में arrange कर देते हैं तो उसको हम systematics का नाम देते हैं। या फिर उसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो भी हम उसको सिस्टमैटिक्स में ही इंक्लूड करते हैं। आइए अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आपने बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में सुना होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज, जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एक साथ आए तो वो स्पीशीज कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, आपको पता है कि सोलेनम ट्यूबरोसम आलू होता है यानी कि पोटैटो होता है, लेकिन सोलेनम उसमें जो है वो जीनस है, लेकिन जो ट्यूबरोसम है वो उसकी स्पीशीज है। इसके अलावा जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि सोलेनम कैटेगरी के सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलेनोजीना। सेम एग्जांपल अगर हम पैंथेरा लियो यानी कि लायन के बारे में लें तो पैंथेरा एक जीनस है जिसके अलग स्पेशीज भी हो सकती हैं। पैंथेरा लियो के अलावा पैंथेरा टिग्रीस भी हो सकता है और पैंथेरा टिग्रीस होता है टाइगर। ठीक है, जैसे कि आप ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। तो होमो इज अ जीनस और सेपियंस इज द स्पीशीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जीनस के बारे में। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीशीज। जब बहुत सारी स्पीशीज इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बनाए विद द सिमिलर कैरेक्टर्स और कॉमन कैरेक्टर्स तो उनको हम जीनस बोलते हैं। जैसे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज सोलेनम एंड द सेम इज द केस विद लायन दैट इज पैंथेरा लियो, लेपर्ड दैट मीन्स पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर दैट इज पैंथेरा टिग्रीस। With several common features, they all are species of the genus Panthera. आइए आगे बढ़ते हैं और फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। The next category is family. Family is a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. अगर हम families में देखें तो families में genus और species के comparison में similarities थोड़ी सी कम हो जाती हैं। मतलब कि अगर आप बात करें टाइगर की या आप लायन की बात करें या फिर अगर आप बात करें कैट्स की, तो ये लोग ऑलमोस्ट सिमिलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फेलिडी फैमिली से। लेकिन अगर आप डॉग और कैट के बारे में बात करें तो जो डॉग्स हैं वो कैनिडी फैमिली के हैं और जो कैट्स होती हैं वो फेलिडी फैमिली के होते हैं, तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है? स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर सिमिलरली अरेंज्ड। मतलब ऐसा होता है कि वो ऑर्डर जिसमें फैमिलीज विद द सेम सिमिलैरिटीज प्रेजेंट हो उन्हें हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है और फैमिलीज का असेंबल करके बनाई गई है। जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो इसमें कंपेयर टू जीनस एंड कंपेयर टू स्पीशीज कम होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक फैमिली, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें कैनिस फैमिली एंड फेलिस फैमिली, दैट मीन्स डॉग फैमिली एंड कैट फैमिली बोथ बिलोंग्स टू द ऑर्डर कार्निवोरा।
आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लास। क्लास में और भी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कम हो जाती हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर के एक क्लास बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ऑर्डर प्राइमेटा, ये सब मिलकर के, जैसे कि बात करते हैं ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमलिया। जबकि ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें कि ऐसे एनिमल्स जैसे कि टाइगर, कैट एंड डॉग, दे ऑल्सो बिलोंग टू द क्लास एनिमेलिया। बहुत सारे क्लासेस मिलकर के एक फाइलम बनाते हैं। अगर हम बात करें क्लासेस की बात करें तो पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, बर्ड्स यानी कि एव्स विद मैमलिया, ये क्लासेस मिलकर के एक फाइलम बनाती है जिसका नाम है फाइलम कोर्डेटा। और प्लांट्स में भी बहुत सारी क्लासेस मिलकर के एक सिमिलर जो कैटेगरी है जिसका नाम है डिवीजन। अगर हम बात करें कि फाइलम तो एनिमल्स के केस में होगा और डिवीजन प्लांट्स के केस में होगा। फिर किंगडम की बात करें तो बहुत सारे फाइलम एक साथ मिल करके किंगडम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें बहुत सारे फाइलम आते हैं, फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम कॉर्डेटा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितना छोटा टेक्सा होगा उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे। अब आप इस पिक्चर को देखिए और ये ध्यान से देखिए कि ये सभी कॉमन नेम और इनके बायोलॉजिकल नेम, इनकी जीनस, इनकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन, ये सब एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितनी इनमें सिमिलैरिटीज़ है। इनकी सिमिलैरिटीज़ इनके बायोलॉजिकल नेम में आप इनको देख सकते हैं कि सबका बायोलॉजिकल नेम का जो जीनस का फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल में है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल में है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है, तो इस वजह से ये इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है? एक ऐसा एड, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी की जिसकी मदद से हम टैक्सोनॉमी के बारे में, हम अलग अलग कैरेक्टर्स और उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। चाहे हम कभी भी पढ़ना चाहें हम उसको देख सकते हैं, उनको हम टैक्सोनॉमिकल एड कहेंगे। जैसे कि आप हर्बेरियम की बात करें, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। एक ऐसे हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस होता है जहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा जाता है, उनको पहले ड्राई किया जाता है, फिर उनको प्रेस किया जाता है और उनको शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जब कभी भी कोई भी उसके अरेंजमेंट्स, उसके साइज, उसके बारे में पढ़ना चाहे तो वो उसको आराम से देखे और पढ़ सके। अगर हम बोटेनिकल गार्डन के बारे में बात करें तो जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो ऐसे स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस होता है। हार्बेरियम में ये याद रखिएगा कि ड्राइड प्लांट्स का स्टोर हाउस होगा, लेकिन जो लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होगा वो आपको बोटेनिकल गार्डन में ही मिल सकता है। एक कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स है, जैसे कि आप क्यू में देख सकते हैं, इंग्लैंड के अंदर क्यू, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इन इंडिया एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया। अगर हम म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। म्यूजियम में जनरली एजुकेशनल पर्पस के लिए भी रखा जाता है। हम स्कूल में, अगर स्कूल से या कॉलेज से ट्रिप्स जो हैं वो म्यूजियम में लेके जाते हैं तो आप वहाँ पर लाइव स्पेसिमेंट्स देख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको मिल सकती हैं। टैक्सोनॉमी के लिए ये सबसे बढ़िया एड कहा जाता है। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स, जिनको हम जू बोलते हैं, वहाँ पे भी आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को देख सकते हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वो वो आप उसको चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो या फिर नॉर्मल एक एनिमल हो। अब वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं विद द ह्यूमन केयर, और वहाँ पर उनको अच्छे से उनकी फूड का, उनके हैबिट्स का, उनके बिहेवियर का ध्यान रखा जाता है। जू में बच्चे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर हम बात करते हैं की के बारे में। की एक अनदर टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। मतलब जो की होती है उसको हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक पेयर में, एक कपलेट में चेक करते हैं।
It represents the choice made between two opposite options. Each statement in the key is called a lead. और की के अंदर हर स्टेटमेंट एक लीड कहलाता है। इसी तरीके से आप अगर बात करें तो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटालॉग्स भी कुछ अदर मीन्स हैं ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, वो भी हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स हैं, कितनी तरह की हैबिटेट्स हैं, उनका एक्चुअल अकाउंट आप फ्लोरा में पा सकते हैं। वहाँ पर आपको इंडेक्स दिया जाता है जहाँ पर आप प्लांट्स की स्पीशीज़ और उनके पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ सकते हैं। मैनुअल्स भी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज़ कहाँ पाई जाती है। इसी तरीके से जो मोनोग्राफ्स होते हैं उसमें भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में। फॉर मोर सच वीडियोज़ hit the like button and do subscribe my channel. Thank you.